Hello students, once again I am Pramod sir. Welcome you all in 7th standard maths period. So students, now today in third lesson decimals, we are going to see exercise third A's third question. That is, find the quotients of the following. That means students हमको quotients निकालने हैं, right? So students, I have taken some examples here which are related to 10, 100, 1000 and so on. When the divisor are 10, 100 or 1000. So let us start students. First of all, see 0.017 divided by 10. So students, in such questions, we have to write down the question itself first. सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे इज इक्वल टू. नाउ स्टूडेंट्स, in the rules I already told you that whenever there will be division and 10, 20 or 30, that is when the divisor are 10, 100 and 1000 and so on, then the decimal point shifts towards left. Means here you can see only one zero is there divided by 10. That means you know that it is nothing but 0.017 divided by 10. Here only one zero is there, right? So a decimal point जो है, it will move towards left and this decimal point shift after one digit because only one zero is there. So it's very easy that if this decimal point moves here, then naturally it will be 0.0017. ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर सोच लो स्टूडेंट्स, तो ये 0.0017. So students, I hope you understood this because we have given a lot of time in previous periods for this concept. Okay. Now students, the second E, 0.73 divided by 100. So students, here two zeros are there. So this decimal point will move two digits here to its left. So here 1 and 1. That means we have to give two zeros, right? And before that decimal point will be here. So 0 point, and after that ये two zeros are there. So 1, 2. Okay. And after that 7, 3. So the final answer will 0.0073. I hope it's also very easy. Now the F 1.673 divided by 1000. So students, you can consider it as like this: 1.673 divided by 1000. The meaning is same, you know it very well. So what will happen here, ये decimal point जो है वो left में आएगा 3 digits को छोड़ के, because in 1000 there are 3 zeros after 1. Okay, so if I give 2 zeros here upon 1000 is there, so if I give 2 zeros before 1, so what will happen? We can place the decimal point here. So naturally it will be 0.001, 0.001673, 0.001673 will be the final answer. So students, these are very easier questions we are going to take up till now, and these are also, of course,
Here 0.76 divided by 1000. So students, directly we can go this decimal point will shift here towards its left once again. So 1 2 means 3 zeros are there, so 3 zeros should be there. After that we can place 7 6. So 0.000. देखो स्टूडेंट्स, ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट छोड़ के इधर आएगा। यहाँ पर 3 डिजिट्स नहीं है तो हमने क्या किए, 3 जीरो को प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट वी कैन राइट 7 6। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट पहले, उसको हमने शिफ्ट इधर कर दिया। ओके, सो इट बिकम 0.00076। नाउ स्टूडेंट्स h 0.001 divided by 100. So students, here you can see ये डेसिमल पॉइंट और इधर आएगा, 2 zeros are there, so it will be, चलो इसको एक बार मैं आपको ऐसा लिखकर दिखा देता हूँ so that it will be more easy for you. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट को इधर अगर शिफ्ट होना है 2 डिजिट छोड़ के, तो ये ऑलरेडी हमको और एक जीरो प्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पर बाद में ये डेसिमल पॉइंट आएगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 जीरोस हमको देने पड़ेंगे। सो द फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 0.0000। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 2, 4 जीरो आएंगे राइट, एंड एट लास्ट 1। सो इट विल बी आवर फाइनल आंसर। Later on, question number I. So it is 10.101 divided by 1000. So directly we are going to solve this. Before decimal point, we need 3 digits, right? Because 3 zeros are there. So 1 2. Third digit is not there, so we can place here 0. So after 0 point, what should we write? 0 1 0. 0 1 0 1 0 1 1 0 1. So students, you know that here we are dividing with 10, 100 or 1000, and we use the means property, or you can say the trick how to solve such questions. Now students, we will take further questions. Now students, the further questions, here L I have written. So here the divisors you can see here are different. They are not 10, 100 or 1000. So in that, what should we do? Let us see. 188.4 divided by 60 is the question, is equal to. So students, what should we do here? We are going to use numerator denominator form. In that form we will write the question. Here first of all, let us see what is it, 188.4. अब यहाँ पर तो 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड नहीं है, तो ऐसे वक्त क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको ही कन्वर्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल, 1000, ये पूरा डेसिमल पॉइंट को छोड़ के हम पूरा लिख लेंगे, 1884 हो गया ये। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 जीरो है, दैट मींस इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म हमको मिल गया, राइट। डिवाइडेड बाय 60 है, चलो लिख लेता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 60 मींस डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 1। डिवाइडेड बाय 60 भी लिख सकते हो या डिवाइडेड बाय 60 अपॉन 1 भी हम लिख सकते हैं। Now students, the next step here you can see, हम कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स। What we are going to do, we will just simplify it, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेकंड लेसन फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है अच्छे से। So this denominator will go to the numerator and numerator moves to denominator. यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी 1884 और यहाँ पर 60 है, 60 है, इसका मतलब 10 into 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 जीरो यानी यहाँ के 10 into 10 100 हम सोच सकते हैं।
तो सिर्फ 6 के बारे में सोचो और 1884 को हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 6 से। ओके, देखो मैंने 60 से डिवाइड नहीं किया, हाँ स्टूडेंट्स, ओनली 6, सिर्फ 6 से हम डिवाइड करते हैं। सो व्हाट विल वी गेट? 6 3s are 18, 6 1s are 6, and now students 6 4s are 24. सो ये क्वेश्चन हमको मिल गया, यानी न्यूमरेटर को अगर हमने डिवाइड किया 6 से यानी डिनोमिनेटर से, तो हमको कितना मिल रहा है? वो 314। कितना मिल रहा है? 300। 6 से डिवाइड किया 314 इंटू 1 है, तो इतना ही आएगा 314, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ये 6 से तो हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 10 है, और ये 10 इंटू 10 डिनोमिनेटर इंटू 10 डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 100। नाउ स्टूडेंट्स 314 डिवाइडेड बाय 100 है, सो इट्स वेरी इजी नाउ, इट विल बी 3.14। यू नो इट वेरी वेल, 2 डिजिट को छोड़ के हमको डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स द सेम procedure we will carry on for the remaining questions also. So let us see this. 23.8 is divided by 20 equals to. So students ये 0.8 है, that means 238 divided by 10 तो करना ही पड़ेगा हमको, right? Divided by ये 20 है, that means it is nothing but 20/1. अभी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेंगे स्टूडेंट्स, so it will be 238 divided by 10 into 1/20 हो जाएगा, right? अब इसमें भी देखो स्टूडेंट्स 20 है, but we will divide with 2 only, सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसमें भी जो 10 रहेंगे 2 into 10, 20 means 2 into 10, तो ये जो 10 है वो हम इस 10 के साथ में 100 कर लेंगे, just like the above question. So 2 से हम अगर डिवाइड करते हैं 238 को, तो हमको मिलेगा स्टूडेंट्स 2 अंदर को 2 अंदर को 2 9 18। सो 238 यानी 238 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको क्या मिलेगा? 119। एंड डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, इट विल बी 110, और यहाँ के और 10 यहाँ के, सो इट विल बिकम 1.19। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, 1.19। So students, moving forward, next question, you can see that in answer the same step, first step is the question itself is equal to, look here now, 231.7 है स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको 2317 लिख लेंगे, यानी विदाउट बॉदरिंग अबाउट डेसिमल पॉइंट हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 10 आएगा। डिवाइडेड बाय ये 70 है, तो हम इसको लिखेंगे फिलहाल 70/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम, ये सभी क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये सभी वैसे टाइप के हैं। Here also I will not think about 70 completely, I will just go with 7. So 2317 divided by 7 हम करते हैं, so what will we get? 7 3s are 21, 7 3s are 21, so 7 1s are 7. So students we get 331. Okay, एंड ऑफ कोर्स 10 ये है, और इसमें ये भी 10, यानी 10 10s are 100 लाइक द अर्लियर। सभी क्वेश्चन सिमिलर दिख रहे स्टूडेंट्स, सो द फाइनल आंसर विल 3.31। नाउ स्टूडेंट्स हियर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, देखेंगे। इन आंसर द फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल 49.88 वो है ये डिवाइडेड बाय 40। So students, यहाँ पर after decimal point 2 digits are there, so it will be 4988
डिवाइडेड बाय 100, ओके। नाउ और एक बार डिवाइड है तो डिवाइडेड बाय 40 है, 40 यानी 40 अपॉन 1। सो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4988 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1 अपॉन 40। सो हियर आल्सो हम 40 के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ 4 के बारे में सोचेंगे और हम डिवाइड करेंगे 4988 डिवाइडेड बाय 4। तो हमको क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, बाद में 4 2 जा 8 1, 4 4 जा 62, 4 7 जा, दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट 1247 इन द न्यूमरेटर। तो ये मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया स्टूडेंट्स 1247 डिवाइडेड बाय, इसमें के 10 है स्टूडेंट्स, 40 में के 10 तो बाकी है, 10 इंटू 100 यानी डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, राइट। सो इट्स आंसर विल 1 2 3 डिजिट हमको छोड़ना पड़ेगा, 742 यानी ये आएगा आंसर 1.247। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बट स्टूडेंट्स इन ऑल these questions what should we do, we have to write down the final step as well. So final step कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, therefore (49.88) divided by 40 equals to 1.247. In this way we must write the final step also. Okay students, now we will see the fourth question as well. Here students you can see the fourth question is also same, find the quotients of the following. Then what is the difference students, in earlier questions, that is question number 3, उसमें जो डिवाइजर है स्टूडेंट्स वो एक होल नंबर है या फिर 10 100 या 1000 है, एक तो होल नंबर है या 10 1000 100 है। बट हियर इन दिस स्पेसिफिक फोर्थ क्वेश्चन यू कैन सी दैट द डिवाइजर्स आर डेसिमल्स, डिवाइजर्स भी डेसिमल है। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो इन सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी को देखेंगे, इट इज 8 डिवाइडेड बाय 1.6। सो स्टूडेंट्स 8 यानी 8 अपॉन 1 होता है, यू नो इट वेरी वेल, डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिखेंगे एज इट इज, देखो स्टूडेंट्स एज इट इज लिख दिया मैंने, 1.6 है तो इसको तो हम लिख सकते हैं 16 अपॉन 10, ओके। यही चेंज है और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा डिवाइजर है उस डिवाइजर को हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है और वो हमें अच्छे से आता है। सो स्टूडेंट्स इट इज नाउ वेरी इजी, 8 अपॉन 1 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लाई, तो ये 10 जाएगा न्यूमरेटर में और 16 आएगा डिनोमिनेटर में। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 100 को तो नहीं छेड़ते, आपको पता है। सो इट इज 8 1 8, 8 2 16। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी 1 into 10 10 और 1 into 2 यानी 2, तो 2 1 are 2, 2 5 are 10, so 5 upon 1 यानी the final answer will 5। so हमारी फाइनल स्टेप एज यूजुअल हमको पता है कि ये क्वेश्चन है हमारा और द आंसर इज 5। सो आई होप you will understand all these questions as well. So 1.56 next question divided by 1.3। तो इस दोनों में देखो स्टूडेंट्स ये भी डेसिमल है ये भी डेसिमल है, तो 1.56 को हम कैसे लिखेंगे, इसको इग्नोर करो, इट इज 156 डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो इट इज डिवाइडेड बाय है तो चलो डिवाइडेड बाय भी रहने देंगे एक स्टेप के लिए, और ये 1.3 है so we can convert it 13 upon 10। so students now हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, so 10 upon 13 हो जाएगा ये। अभी देखो स्टूडेंट्स एक एक जीरो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 156 डिवाइडेड बाय 13, 156 डिवाइडेड बाय 13 करना है, 13 1 13, 13 2 26 यानी हमारा क्वेश्चन है 12। तो इसको 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 156 को तो हमारा आंसर क्या
यानी 12 हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिवाइजर स्टूडेंट्स हमारा 10 है। कितना है? 10 into 1 यानी 13, तो ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिया। तो 10 डिनोमिनेटर में है, सो इट इज 12 by 10 इज नथिंग बट 1.2, and in the same way we will write the final step also. So students, next now f, यहाँ पर मैंने f लिखा है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। So first step 12.42 divided by 2.7 means ये डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, 1242 डिवाइडेड बाय 100, और ये डिवीजन का सिंबल, राइट, and 2.7 means 27 by 10. Now we are going to use multiplicative inverse here, so it will be multiply with ये 10 है न्यूमरेटर में और 27 in the denominator. So students, once again we can cancel zeros in the numerator and denominator. 1 0 I cancelled. Now 1 2 4 2 1 2 4 2 divided by 27, divided by 27 है, तो 27 4s are 108, यहाँ पर आ जाएगा, तो 14 8 6 यानी ये 16 रिमाइंडर हो गया, ये 2 अगर मैं लेता हूँ तो 26 are 162. सो क्वोशंट आ रहा है स्टूडेंट्स 46, 46 क्वोशंट आ रहा है, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। ये बन गया हमारा 46 न्यूमरेटर, यहाँ पर 46 into 1 यानी 46 आएगा, और डिनोमिनेटर में ये तो 27 1 27 करके हमने 46 न्यूमरेटर में लाया है, तो यहाँ पर सिर्फ है 10, 110 तो कैंसिल है। सो द फाइनल आंसर विल 4.6, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट, बिकॉज इन 10 only 1 0 is there. So it is also very easy. So in this also you have to write down the final step. Now students, h 37.96 divided by 7.3 is equal to, let us see students, 3796 divided by क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, दैट मींस 100, ओके, डिवाइडेड बाय ये 7.3 है, इट इज नथिंग बट 73 अपॉन 10, ये तो आपको पता है। सो 3796 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ये 10 न्यूमरेटर में गया और ये 73 डिनोमिनेटर में। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी कैन कैंसल द 1 0, ओके, यहाँ तक तो ठीक है। नाउ 3796 डिवाइडेड बाय, हमको क्या करना है, 73, ये 73 है स्टूडेंट्स, तो 73 का टेबल, तो 7 का टेबल अगर हम बोलते हैं तो 5 से हो जाएगा, यहाँ पर 73 5 are 365 आएगा, सो 9 minus 5 means 4, 7 minus 6 means 1, तो 14 रिमाइंडर है, और 6 ऊपर से अगर हम लेते हैं 73 2s are 146, so quotient is 52, you can see there the quotient is 52, so it will be 52 divided by 10, and you know students the final step, therefore 37.96 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7.3 से इक्वल्स टू, देन द आंसर विल, एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल पॉइंट मींस 5.2। तो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस आल्सो रिमेन्स हियर, so in further class we will see the further questions, okay. Okay students, in next period we will see further questions. See you in next class. Bye bye.